جزاک اللہ خیر سسٹر رغبت، آپ نے بہت ہی پیارے ریمائنڈرز ہمیں دیے آج رمضان شروع ہونے سے چند دن پہلے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ انشاءاللہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے، ان کا نوٹ ڈاؤن کر لیں گے اور ان کو انشاءاللہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم انشاءاللہ سسٹر سعدیہ کے ساتھ تجوید دیکھتے ہیں، جو آپ سسٹر سعدیہ ہمیں تجوید کروا رہی تھیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ ہم لوگ اپنے تجوید کے سیشن میں کیریکٹرسٹکس آف لیٹرز یعنی کہ صفات الحروف پڑھ رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم نے اس میں دیکھا تھا کہ صفات غیر متضادہ جو ہم نے جن کے اپوزٹ تھے وہ ہم نے کمپلیٹ کر لیے تھے۔ پھر ہم نے اپنی پچھلی کلاسوں میں وہ صفات پڑھنا شروع کی جن کا کوئی اپوزٹ نہیں ہوتا، اور اس میں ہم نے صفیر، قلقلہ اور لین الحمدللہ سیکھ لیے تھے۔ آج ہم مزید نیکسٹ 4 اور صفات دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں۔ تو آج ہم دیکھیں گے صفات الحروف میں استطالت، تفشی، انحراف اور تقریر۔ آج ہم ان 4 صفات کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہے استطالت۔ جی استطالت کے لغوی معنی ہے طویل ہونا، بلند ہونا، لمبائی چاہنا۔ طول سے ہے، اگر دیکھے جائے نا طول کیا ہوتا ہے، اور اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لمبائی، طول کے لیے طویل، اس کے لفظی معنی لمبا کرنا طوالت، اور اس کے اصطلاحی معنی حرف کا مخرج میں دیر تک جاری رہنا۔ حرف کا یعنی کہ جو بھی حرف ہے جس کے اندر یہ صفت پائی جائے گی اس کا مخرج میں دیر تک جاری رہنا۔ تو بیسکلی استطالہ بھی آتا ہے، عربی میں استطالہ بولتے ہیں، میں کیونکہ اردو میں ہم پڑھ رہے ہیں تو میں نے استطالت لکھا ہے۔ تو اس کو یاد رکھیں، تو طویل سے ہے، یہ طول سے ہے، طویل، طول، طوالت۔ مستطیل اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، مستطیل کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جب کبھی ہم ایک جیومیٹری میں ایک شیپ کا نام ہے نا مستطیل، اردو میں پڑھتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، ریکٹینگل۔ تو اگر ہم ایک اسکوائر لیں اور ہم اس کو اگر اسٹریچ کریں دونوں طرف سے تو وہ کھچ جائے گا، ریکٹینگل، اسکوائر ریکٹینگل بن جائے گا، تو وہ مستطیل کا شیپ آ جائے گا۔ اسی طریقے سے جس لیٹر میں یہ صرف اور صرف ایک ہی لیٹر میں پائی جاتی ہے، وہ حرف ہے ضاد۔ ضاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اور اس میں جب ہم ضاد کا مخرج ادا کرتے ہیں تو یہ آواز کھچتی ہے، لمبی ہوتی ہے، مخرج نہیں کھچتا ہے۔ مخرج یعنی کہ آواز جاری نہیں رہے گی، ہم اس کے مخرج کو اسٹریچ کریں گے۔ اور جب ہم نے مخرج دیکھا تھا ضاد کا، اگر کسی آپ لوگوں کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم آرٹیکولیشن پوائنٹس دیکھ رہے تھے تو ضاد کا مخرج یہ ہے کہ زبان کے جو ہماری رائٹ یا لیفٹ دونوں سائڈوں سے، یا تو دونوں سائڈوں سے ہم زبان کے کناروں کو اٹھائیں، یا ایک طرف سے، اگر دو طرف سے مشکل تو رائٹ سائڈ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو رائٹ سائڈ کی ہماری جو زبان کی کروٹ ہے وہ اوپر کے جو داڑھ ہے ہمارے پیچھے کے، اس کی جڑوں سے ٹچ ہوتی ہے، تو ضاد کا مخرج نکلتا ہے۔ تو یہ ضاد جو ہے عربی میں سب سے زیادہ مشکل لیٹر مانا جاتا ہے، سب سے مشکل حرف ہے یہ، لیکن ہم اس کو الحمدللہ اپنی پریکٹس سے اس کو مکمل اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور میں کہہ دوں، بہت ساری سسٹر اس میں کنفیوز رہتی ہیں، ضاد جیسے صاد ضاد اردو میں بولا جاتا ہے، ضاد ضاد، اس میں بہت اختلاف رہا ہے اسکالرس کا، اور اس پر بہت زیادہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں صرف ایک اس لیٹر کے اختلاف پر، اور عموماً انڈیا پاکستان میں ہم اس کو ضاد ہی پڑھتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو عربوں کے لہجے میں پڑھو، تو ہم کو
उनका लहजा इख्तियार करने की एटलीस्ट कोशिश करनी चाहिए। और जबकि अब तमाम एक सब चीज लोग तमाम स्कॉलर्स जो मुत्तफिक हो गए कि ये ज़ौद नहीं है, ये गौद है, ये लेटर गौद है, तो हमें इसको गौद ही अदा करना है, इसका सही मखरज के साथ आर्टिकुलेशन पॉइंट को नोट करते हुए कि जबान हमारे पीछे के दांतों से टकराएगी, ठीक है, जड़ों से, तो बहुत अदा होगा। अब हमने आज एक सिफत सीख ली इस्तितौला, इस्तितौलत की, कि इसमें जब मखरज खिंचेगा, जब हम बहुत अदा करेंगे तो इसमें मखरज में आवाज जो है देर तक मखरज खिंचेगा। जैसे हमने हम्स पढ़ा था कि आवाज जारी रहती है, आवाज जारी रहती है, इसमें हम पढ़े कि मखरज स्ट्रेच हो रहा है, बहुत बहुत बहुत। देखें, जब एकदम से हम खट से है ना टच नहीं करेंगे जबान को उठा के अपने दांतों की जड़ से, दो दो दो, ऐसा नहीं, बहुत मतलब आहिस्ता से लाएंगे और खींचते हुए उसको पूरे मखरज तक हम उसको टच करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड दिखा दें जी। इसमें दौत का मखरज आपको नजर आ रहा है ना, जो ब्लू पॉइंट है ये हमारे सारे दाढ़ हैं, और ये ब्लू जो है हमारी जबान की करवट समझे, और हमें इसको दाढ़ों से टच करना है, ये पूरे दाढ़ों से। तो हमने इसको स्लोली करना है इस तरीके से कि पूरा मखरज खिंच जाए, लेंथ लेंथ चाहिए इसको पूरा, ये खिंच के जैसे वाव वाव दो वाव, हमने खट से वद नहीं करा, वद झटका नहीं देना है, इसको स्लोली तवील करके खींच के इसको इसके अंदर इस लाना है, ठीक है, वाव 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 दौलीन, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, आसान है और सिर्फ एक ही लेटर है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है इसको बहुत ज्यादा। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारी सिफत है तफशी। तफशी देखें, कहते हुए भी जो है ना इसमें एक स्प्रेड की सी साउंड आ रही है, इसके लग़वी माने हैं फैलना, स्प्रेड होना, और इसके इस्लाही माने हैं कि मुंह के अंदर आवाज का फैलना। तो ये सिफत भी जो है सिर्फ और सिर्फ एक लेटर में पाई जाती है, और वो लेटर है शीन। तो शीन, अब देखें शीन, और हमने अगर जब ये पढ़े थे इसके आर्टिकुलेशन पॉइंट जब हमने पढ़े थे, तो इनका मखरज शीन का और जीम का सेम मखरज है, राइट, अगर किस आप लोगों को याद हो तो। लेकिन अगर अब हमने यही देखा था कि हम सिफात क्यों पढ़ रहे हैं, हम सिफात इसीलिए पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे लेटर जो सेम मखरज से अदा होते हैं, जिनको हम सेम मखरज से प्रोनाउंस करते हैं, उनके अंदर डिफ्रेंशिएट लाने के लिए हम सिफात सीखते हैं। तो जैसे हमने जीम में हमने खलखला लास्ट क्लास में कर लिया था, तो अज, देखें अज और अज में और अश में फर्क हो गया, ठीक है ना। अगर हम जीम को भी अगर शीन की तरह ही पढ़ने लग गए, या शीन को जीम की तरह ही, क्योंकि मखरज तो सेम है, आर्टिकुलेशन पॉइंट सेम है कि जहां से अदा हो रहे हैं जीम भी और शीन भी, मगर इनकी सिफत ने इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया। कि जीम में हमने देखा था कि खलखला है, इसको हमने बाउंसिंग साउंड के साथ अदा करना है अज, और शीन में हमने आवाज को फैलाना है जिसे अश। और शीन में एक और हम्स की भी हमने पढ़ ली थी कि हम्स में भी आवाज फैलती है। और ये तफशी, मतलब अब तफशी सिर्फ शीन में है, और हम्स जो है हस्सा शख्सन सकत आपके पूरे लेटर्स में था, उन लेटर्स में। उसके अलावा अब आपने ये देखना है कि आपने शीन अदा करते हुए उन सब लेटर्स से ज्यादा इसमें आवाज को स्प्रेड करना है। तो और इसकी हम देख लेते हैं थोड़ी सी, नेक्स्ट स्लाइड जी। तो देखिए, जब शीन अदा हो रहा है तो पूरे मुंह में जब आवाज जो है ना, पूरे मखरज इसमें फैल जाएगा, हर तरफ से फैल के निकलेगा, और इसको हम ब्लॉक नहीं करेंगे। तो अश, तो और सेम चीज के ये हर लेटर का जुज है, इसमें हमेशा रहेगी शीन के साथ। लेकिन ऑब्वियसली जब इस पर जज़म आ जाता है लेटर के ऊपर, तो हमको ज्यादा इसको ज्यादा हम अच्छी तरीके से इसको फील कर सकते हैं, जैसे अशहदु,
अशहदु, ठीक है, शीन पे जज़म है। लेकिन दूसरा लेटर जो है वो शई, शई। अब आवाज आएगी, जैसे आप देखें किसी जैसे हम कभी बच्चों को चुप कराते हैं शोर करते वक्त, तो साउंड आती है ना, बस वही शीन की साउंड है। तो वो शीन की साउंड फैल जाती है, हर तरफ फैल जाती है। और जैसे मैंने पहले ही बताया था कि अरबी में हर लफ्ज के अपने मीनिंग है। तो शीन का जो मीनिंग आता है उसमें फैलना वैसे ही आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे शर है, शर फैलता है। शाख है, शजर है। तो शाख इसको इसीलिए कहते हैं कि वो फैली हुई होती है हर तरफ शजर पे। तो ये शीन में फैलने का मफहूम है। इसके मीनिंग्स में ये छुपा हुआ है शीन में। तो जब आप शीन अदा करेंगे तो वो आवाज भी, उसका मखरज भी फैल जाएगा। शैअन, इंशाअल्लाह, शितुम, अशरन, अशरन, अशहुर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमारी नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक जो हम देख रहे हैं, वो है इनहिराफ। इनहिराफ जो है उर्दू में भी बहुत इस्तेमाल होता है। होपफुली आप लोगों को जो है ना इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए। पलट जाना, लौटना, फिरना, ये इनहिराफ के मीनिंग्स में आता है। तो इसके लग़वी माने हैं फिरना, और इस्लाही माने हैं कि हुरूफ को अदा करते वक्त एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिर जाना। तो यानी कि इसको, ये जो ना, ये सिफत दो हरूफ में पाई जाती है, ये हरूफ मुनहरफा कहलाते हैं, इसको लाम और रॉ। अच्छा, अगर आप देखें तो लाम और रॉ का जब हम मखरज देखते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। मखारिज जब हमने पढ़े थे, अगर हम देखें जबान, हमारी जबान का मिडिल पार्ट हमारे ऊपर के तालु से, अपर पाले से टच होता है। अल, अर, अर, अल। तो अर अदा करने के लिए हमें थोड़े से हमारी जबान आगे आती है, और लाम अदा करने के लिए जबान थोड़ी सी पीछे रहती है। लेकिन जब हम लाम और रॉ, ये दोनों जब हम अदा करते हैं तो अल, 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 तो अल होके वो रॉ की तरफ पलट जा रहा है उसका मखरज। और जब हम रॉ अदा कर रहे हैं तो रॉ अदा करते वक्त रॉ अदा करते वक्त रॉ से पलट के वो नून की साइड पे जा रहा है। तो इसकी बेसिक ये है कि जब हम मुनहर ये हरूफ को अदा करते हैं, लाम और रॉ को, तो जबान एक मखरज से दूसरे मखरज की तरफ फिरती है, यानी लाम के मखरज से रॉ की तरफ और रॉ के मखरज से लाम की तरफ। तो ये जस्ट बहुत सिंपल है, इसकी कोई इतनी आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ये जो है लाम और रॉ क्लोज लेटर्स हैं बहुत एक दूसरे के, और बस इन्हेराफ है इसके अंदर। हमें पलट, जब हम लाम अदा करते हैं तो रॉ की तरफ जाता है, और रॉ अदा करते हुए हमें लाम की तरफ इसको फील फील होता है पढ़ते वक्त। नेक्स्ट है हमारी सिफत तकरीर। तकरीर, तकरीर भी देखें, किसी चीज का बार बार होना, रिपीटिशन, ठीक है। अब और इस्लाही माने हैं कि हुरूफ को अदा करते वक्त जबान की नोक में हल्की सी कपकपाहट पैदा हो। और ये सिफत जो है, सिफत तकरार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, सिर्फ लेटर रॉ में पाई जाती है, ठीक है, लेटर रॉ में पाई जाती है। तो अब इसका हम कैसा देखेंगे कि रॉ में कैसे, जैसे और तकरार की, रिपीटिशन की साउंड आ रही है, तो हमने इसको इस तरीके से अदा करना है, अर। तो हमने देखे इन्हेराफ में देखा कि लाम भी था, रॉ भी था, मगर इन्हेराफ में क्या था, जबान का हमने देखा जब रॉ मखरज तो देखा क्लोज है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सेम मखरज, सेम मखरज नहीं है, लाम का जरा पीछे है, रॉ का थोड़ा सा आगे। लेकिन हमने इसको तकरीर में क्या है कि तकरीर में आप, इसमें एक रिपीटेशन किसी साउंड है, जैसे आप पढ़ते वक्त फील भी करें, और जैसे इसमें कहा गया ना कि कपकपाहट पैदा होती है, तो जो साउंड आ रही है, ये कपकपाहट की सी साउंड है। तो ये साउंड फील होनी चाहिए रॉ के अंदर, ठीक है।
تو تقریر بس ریپیٹیشن ہے اس میں. سمپل, دس از ویری سمپل, بہت ہی مطلب یہ بہت آسان ساری صفات ہیں, اس لیے میں نے ساتھ ساتھ ایک ہی دفعہ میں کر دی ہیں. اس میں کوئی مشکل چیز نہیں ہے. بس اس کو تقریر جب رو آئے گا, بہت زیادہ بھی تقریر نہیں کرنا ہے کہ وہ ایسی ساؤنڈ بھی نہ آ جائے. اس چیز کا خیال رہے کہ زبان جو ہے نا اپنے مخرج پر جمی رہے گی, اس کو زبان کو اپنے مخرج سے ہٹانا نہیں ہے, مگر زبان کو اپنے مخرج پر رکھتے ہوئے اس میں جیسے ریپیٹیشن کا سا ایک آپ نے امپیکٹ پیدا کرنا ہے کہ جیسے میں نے کہا الرحمن الرحمن اور تو آپ ہوپ فلی آپ لوگ فیل کر رہے ہوں گے اور سمجھ آ رہا ہوگا. تو الحمدللہ آج ہماری یہاں پر صفات کمپلیٹ ہو گئی ہیں. تو ٹوٹل جو ہے صفات جس میں ہم نے وداؤٹ اپوزٹ سیکھی ہیں وہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کر لی تھی سفیر, قلقلہ اور لین, اور آج ہم نے دیکھی ہیں استطالت, تفشی, انحراف اور تقریر. تو اب آپ ان سب چیزوں کو نوٹ کریں اور اپنی پریکٹس میں رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی اب نیکسٹ کلاس میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی, اور اب اپنی ریسائٹیشن کی طرف آتے ہیں.